final days of our theatre course, it's hard not to feel a wave of nostalgia and gratitude. What started as a series of workshops and exercises has evolved into a transformative journey, one that has touched each of us in profound ways. Over the duration of the course, each one of us have explored ourselves into the world of dramatic arts. Role-playing scenarios became a perfect canvas for us to explore and express our deepest emotions and thoughts. From the light-hearted to the deeply dramatic, each experience was an opportunity to step into another's shoes and see the world through their eyes. With each passing day, we have grown not only as performers, but as individuals. As we approach to the end of this course, we carry with us not just the skills and knowledge we have acquired, but also the memories and friendships that we have made throughout this journey. This is not the end, but the beginning of new possibilities, and for what we are profoundly grateful. Great theatre is about challenging how we think and encouraging us to fantasize about the world we aspire to. Good evening, everybody. This is Mahi Gupta. A certificate course in theatre was not merely a course for acting. It taught us a way of life. It helped us to communicate effectively, develop empathy, and understand human emotions, to develop social skills, work in a team, and build self-confidence. It also served as a rich training ground for cultivating leadership skills in us. This has instilled confidence skills within us and has changed our I can't to I can attitude. That's the magic of art and the magic of theatre. It has the power to transform an audience, an individual, to transform them and give them an experience that changes their life, opens their heart and their minds, and the way they think. Thank you. Good evening, everyone. I am Sumana this side. I had joined theatre classes to improve the expression of my speech. And what could help me better than theatre classes? And as we conclude this course, I am leaving with so much more. We got to explore different aspects of theatre, which is music, dance, acting skills, compassion, and much more. I am very grateful to the University of Jammu for this opportunity, and I will forever cherish these memories. Thank you. Good evening, everyone. I'm Malvika Kalra. At an age of 60 and never having indulged in performing arts, this theatre workshop has been an overwhelming experience for me. While I cannot say much about my acting skills, learning the nuances of this craft from our event coordinator and interacting with these young participants has created special memories that will always remain etched in my mind. I'm grateful to the University of Jammu for organizing such a wonderful program, and I hope that future endeavors of this kind will benefit more and more people. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। जी हाँ, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में, और बधाई देना चाहता हूँ इस मंच से जम्मू यूनिवर्सिटी को, जिसने एक इतना यूनिक इनिशिएटिव, इतना अनोखा इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को एक माला में पिरोया कुछ नए लाइफ स्किल्स सीखने के लिए। मेरे लिए ये कोर्स एक लाइफ स्किल मैनेजमेंट था। अपने मिड करियर में मुझे इस कोर्स की क्या ज़रूरत थी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चाहिए थी, बोलने के लिए खुला मंच चाहिए था, और सबसे बड़ी खास बात इस कोर्स की यही थी, इसने इतने दिनों में हमें एक खुला मंच दिया, हमें परवाज़ दी, उड़ान दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रोफेसर अलका शर्मा मैडम का और हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर सुमित जी का, जिन्होंने हम पर इतना यकीन दिया और खुले मंच पे बस हमें छोड़ दिया कि जाइए अपनी जिंदगी जी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा यहाँ पर बैठे महानुभावों से कि इस कोर्स को बस यहाँ तक सीमित मत रखिए,
इसकी आवाज़, इसकी परवाज़ और भी बुलंद हो सकती है। बस आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना ही, इस कोर्स में हमने बहुत कुछ सीखा, पर मुझे थिएटर गेम ज्यादा अच्छी लगी। मुझे तो यह बात अच्छी लगी कि कैसे हम अपनी इमेजिनेशन से किसी और तरह अपनी लाइफ में जा सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। और जैसा कि सब कहते हैं कि थिएटर करोगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि थिएटर तो पढ़ाई के नए नए टूल्स देता है, यानी ये दूध में हॉर्लिक्स का काम करता है। एक चीज हमने एक और सीखी कि हमारे आसपास इतनी कहानियां हैं, इतनी आइडियाज हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट में नाटक या स्किट कर सकते हैं। तो बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी रिटन स्क्रिप्ट और तैयारी के, हम सब आपके सामने नाटक करने आ गए हैं। तो अब हमें जज्बा है, जज्बात है, खुद पर भरोसा और आप सबका साथ है। बस जरूरत है तो नाटक के लिए एक टॉपिक की, वो भी सोच लेंगे। तो सोचो ना, कब सोचोगे? हाँ, सोचो। मुझे आइडिया आ गया। क्या आइडिया? हम भारत के इतिहास पर स्किट करेंगे। हम भारत के गौरवमय इतिहास के बारे में बताएंगे, कैसे इतने आक्रमण सहन करने के बाद भी भारत की भारतीयता पर कोई आंच नहीं आई। हम बताएंगे कैसे हमारा भारत विश्व गुरु हुआ करता था, विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। हम सबको अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। अरे वाह, कितना बढ़िया आइडिया है। हिस्ट्री में तो तुम्हारे 100% मार्क्स आते होंगे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? द्युतिमा। तुम्हारे पिताजी का? श्री दिवाकर शर्मा। उनके पिताजी का? श्री बालकृष्ण शर्मा। और उनके? वो तो नहीं पता, पापा से पूछ के बताऊंगी। लो, खुद की हिस्ट्री तो पता नहीं और बात करते हैं भारत के गौरवमय इतिहास के बारे में। चलो चलो, कुछ और सोचो। हाँ भाई, सोचो। अरे, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आ गया। क्या? क्यों ना हम सोशल मीडिया की एडिक्शन पर एक स्किट बनाएं। हम उसमें बताएंगे कि कैसे ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हमारे स्टडी को प्रभावित कर रहे हैं। हम बताएंगे कि युवा ही नहीं, बच्चे भी इसके जाल में फंस गए हैं। हम बताएंगे कि कैसे ये ऐप्स हमारा ब्रेन ट्रेन कर रहे हैं। हम बताएंगे इसके सारे दुष्परिणामों के बारे में सबको। वाह, क्या क्रांतिकारी विचार है आपका। आप सब इन्हें जानते हैं? ये जो मैडम है ना, ये 3 YouTube चैनलों की मालकिन है, मालकिन। 4-5 तो इनके फेसबुक पर अकाउंट्स है, वैसे एक एंजल प्रिया नाम से भी है। और ये जो सारे ऐप्स इन्होंने गिनवाए हैं ना, आधे से ज्यादा तो इनके फोन पर इंस्टॉल्ड है। सॉक्स तक खरीदने जाती है ना, तो लिखती है #shoppingtime, #social-media influencer, #social-media की एडिक्शन। चलो कुछ और सोचो। सोचो यार। रुको, मुझे आइडिया आ गया। क्या आइडिया? क्यों ना हम खेलकूद के महत्व पर स्किट करें। हम बताएंगे कि कैसे खेलकूद से हमारा शरीर तंदुरुस्त, दिमाग दुरुस्त होता है। हमारा देश भारत युवाओं का देश है, और अगर बच्चे युवा खेलकूद में रुचि लेंगे तो उनमें नई शक्ति का संचार होगा और हमारा देश प्रगति की ओर चलेगा। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। हाँ, क्या विचार है, शक्ति और सुवृत्ति से भरपूर। तुम तो मुझे किसी खेलकूद की चैंपियन लगती हो। कौन सा खेल खेलती हो? कौन सा? पूछो कौन सा नहीं। मैं क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन सब खेलों में चैंपियन हूँ। विश्वास नहीं है तो चलो एक राउंड खेल लेते हैं। निकालो मोबाइल। क्या? मोबाइल में? तो तुम्हें क्या लगा ग्राउंड में? नहीं, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। तो ये है इसका खेलो इंडिया। चलो कुछ और सोचो। हाँ भाई, सोचो। हाँ, करते जाओ सारे आइडियाज कैंसिल। अरे, अपनी चीज को खुद ही क्रिटिसाइज करोगे तो नाटक कैसे बनेगा? हमारा नाटक कैसे बनेगा? क्यों ना हम सब मिलकर सोचें। आ गया, हमें आइडिया आ गया। आज हम एक ऐसे नाटक पर, एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे ज्यादा गंभीर विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। भला आप ही सोचिए वो क्या है जो यहाँ भी है और वहाँ भी।
इधर भी है और उधर भी, धूप में भी है, छांव में भी, शहर में भी है, गांव में भी। सोचिए सोचिए। जिसकी बात हम कर रहे हैं उसे जानते तो सब हैं, ये भी जानते हैं कि वो खतरनाक कितना है, पर उसे रोकने के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, यानी कि पोल्यूशन, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। लो जी, ये तो डिसाइड हो गया कि पोल्यूशन पर स्किट करेंगे, पर स्किट में क्या करेंगे ये कब सोचेंगे? क्यों ना हम पोल्यूशन के बारे में सबको लाभ और हानियां बताएं? अरे बेवकूफ, पोल्यूशन की सिर्फ हानियां होती है, उसके लाभ नहीं, और ये तो सबको ही पता है। और अगर पता है तो वो इसे रोकता क्यों नहीं? इधर पोल्यूशन ने कितनों को खत्म किया और तुम पोल्यूशन को रोकने की बात कर रहे हो। अब सारी स्किट नरेशन में ही निकालोगे, कुछ एक्टिंग भी तो दिखाओ। एक्टिंग देखनी है तो आओ, तुम्हें गांव की सैर कराते हैं। पर हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे ना। तो तुम्हें क्या लगता है पोल्यूशन सिर्फ शहरों में होता है, गांव में नहीं? आओ, तुम्हें गांव की सैर कराते हैं। चलो। मजा ही आ गया, कल कल करता पानी, आहा ताजा हवा। रुक, ये क्या किया तूने? क्या मतलब क्या किया? पूछ रहा है क्या किया? अब हरे भरे मैदान में भला मैं क्या करने आऊंगा? अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है तूने क्या किया। मेरा मतलब है ये क्या किया, क्यों किया? क्या मतलब क्यों किया? भाई कुछ करने का मन हुआ तो कर दिया, अब इसके लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। वहाँ सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, तुम ये योगदान दे रहे हो। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी गंदगी फैलाई है वो हमने फैलाई है। शहरों का पता है वहाँ पे कितना कूड़ा, और उसका क्या? जो तुम खुले हरे भरे मैदान में लैंड माइन्स बिछा रहे हो, इसका क्या? वो अरे ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। बातें मत बनाओ, ये जो तुम खुले आम कर रहे हो पाप है, पाप। अच्छा, ये पाप है तो जो तुम कर रहे हो वो चोरी छुपे, उसका क्या? अजीब इंसान है, बातें बनाता रहता है तू भी ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे ये किसने कर दिया? जलने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी यार, तेरा ही किया धरा है ये। अरे स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और फिर हो गई गांव की सैर, देख ली गांव की स्वच्छता। अरे ऐसा मत बोलो, सभी गांव ऐसे नहीं है। हाँ, कुछ इससे भी बुरे हैं। अरे मेरा मतलब था सभी गांव ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी, बस अवेयरनेस की कमी है। तो आओ, तुम्हें शहर की अवेयरनेस सिखाते हैं, तुम्हें शहर की सैर कराते हैं। चलो 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 चलो। क्यों भाई नीले डस्टबिन, बड़े परेशान लग रहे हो? बड़ी गंभीर समस्या है भाई हरे डस्टबिन, पर तुम नहीं समझोगे, तुम्हें तो आदत हो गई है। भाई कुछ बताओगे तो पता चलेगा, हम दोनों एक ही बिरादरी से हैं। मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो और अपनी सारी समस्या बताओ। मेरी समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस। है आइडेंटिटी क्राइसिस? हाँ, the awkward and annoying feeling of being extremely efficient and so much inefficient. भाई समस्या तो तुम्हारी कुछ गहरी ही लगती है, पर वो अंग्रेजी वाला हिस्सा कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ही था, तुम नहीं समझोगे, तुम्हें आदत हो गई है बेइज्जती करवाने की। बेइज्जती? वो कैसे? किसने की मेरी बेइज्जती? और वो कैसी बेइज्जती की कि मेरी हो भी गई और मुझे पता भी नहीं चला? कब की? रोज की? किसने की? सबने की। और कैसे की? जब जब कोई हमें छोड़कर हमारे आगे पीछे कचरा फेंकता है, तब तब मेरी, तुम्हारी, हम सभी डस्टबिन की बेइज्जती होती है, क्योंकि ये हमारा हक है कि कचरा हमारे पेट में जाए, और लोगों का ये फर्ज है कि वे कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। लो, इतनी सी बात से परेशान हो रहे हो? अब लोग अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं तो उसमें बेइज्जती तो इनकी हुई ना, हमारी नहीं। अरे बेइज्जती चाहे किसी की भी हो, पर भूखे तो हमें रहना पड़ता है ना। हमारे आगे पीछे इतना बदबूदार कूड़ा पड़ा रहता है, मन करता है काश ये सब मैं अपने पेट में डाल सकूं, पर लोग कोऑपरेट ही नहीं करते। दूर से निशाना लगाकर कूड़ा फेंकेंगे जैसे कोई बास्केट
कोई 12:30 भी करो थी। वाह क्या बात है, लेकिन अभी चुप कर जाओ। वो देखो सामने की लोकेलिटी से कुछ पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग आ रहे हैं। काश इनमें से किसी को हम पे तरस आ जाए और हमारा पेट भर जाए। अरे बेटा जल्दी करो, प्रोग्राम में मेरी स्पीच भी है, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कौन सा प्रोग्राम मम्मा? अरे बताया था ना, फिर भूल गई। आज स्वच्छता दिवस है, उसका प्रोग्राम। मम्मा स्वच्छता दिवस पर हम क्या करते हैं? स्वच्छता दिवस पर हम लोगों से स्वच्छता के महत्व के बारे में बताते हैं, स्वच्छता की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गली मोहल्ले की सफाई कर लेते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डालते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आ सके। मम्मा अगर स्वच्छता अच्छी होती है तो हम घर की सफाई रोज क्यों नहीं करते? अरे हट, मैं अपने कमरे की रोज़ ना सफाई करूं तो ये गली मोहल्ले की बात कर रही है। अरे बेटा, जिस काम के लिए जो दिन बना है वो काम हमें उसी दिन करना होता है। अब बता, हम पटाखे कब जलाते हैं? दिवाली पर। और रंगों से कब खेलते हैं? होली पर। तो उसी तरह सफाई के लिए भी एक दिन बना है, तो आज हम गली मोहल्ले की सफाई करेंगे। और हाँ, याद रखना मेरी अच्छी सी फोटो ज़रूर खींच लेना। मम्मा रोज तो घर की सफाई पापा से कराते। चुप, तो आज गली की सफाई खुद करोगे? हाँ, ये देख मेरा न्यू झाड़ू और ये क्लीन कूड़ा। आज इस झाड़ू से इस कूड़े की सफाई करेंगे। आफ्टर ऑल स्वच्छ भारत का इरादा तो है। मम्मा ये पैकेट में ब्लू डस्टबिन में डालूं या ग्रीन डस्टबिन में? अरे जहाँ कूड़े की ढेरी पड़ी है वही डाल दे, देख नहीं रही कितना गंद है। अच्छा चलो, बहुत लेट हो रहा है। देखा, ये मैडम स्वच्छता दिवस पर मोहल्ले की सफाई करने आई हैं और इनका ध्यान हमारी तरफ गया ही नहीं। इनका ध्यान सफाई में कम और सफाई के दिखावे में ज्यादा है। तो देखा आपने, इसी तरह अगर स्वच्छता की बजाय स्वच्छता का दिखावा होगा तो हमारा क्या हाल होगा? प्रदूषण का एक दिन हमारे ऊपर राज होगा इस तरह। अगर आपको हमारी बात पे जरा सा भी शक है तो अभी यहाँ पर पोल्यूशन की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, जरा उसके इरादों पर भी ध्यान दें। पोल्यूशन की मीटिंग? जी हाँ, पोल्यूशन की एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें वो अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करेगा अपने शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ। है? हाँ। पोल्यूशन के शेयर होल्डर्स? हाँ, गंदगी, बीमारी, पॉलिटिक्स, ये सारे पोल्यूशन के शेयर होल्डर्स ही तो हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है पोल्यूशन आ रहा है। अरे पोल्यूशन आ गया। यानी कि प्रदूषण। पहले मैं बहुत छोटा हुआ करता था, पेड़ पौधे हरियाली देखकर डर जाया करता था। फिर आप लोगों के लालच ने हरियाली की वाट लगा दी। फिर क्या था, मेरे फैलने का सिलसिला शुरू हो गया और मेरा कारोबार ग्लोबल हो गया। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको हर जगह सूरज चांद दिखे ना दिखे, मगर मैं यानी प्रदूषण हर जगह दिखेगा। मुझे आज भी याद है इंडिया में मेरे स्ट्रगल के दिन, जब मैं अपना प्रदूषण का कारोबार फैलाने की कोशिश कर रहा था। लोग मुझे बर्दाश्त ही नहीं करते थे। जहां मैं पनपने की कोशिश करता बस वही मुझे दबा देते। थक हार कर मैं विदेश चला गया। अरे वहां मेरा खूब स्वागत हुआ। बिना किसी शर्त के लोगों ने मुझे अपना लिया। मेरी खामियों में भी उनको मेरी खूबियां नजर आई। अरे भाई, आंखों पर प्रोग्रेस की पट्टी जो बंधी हुई थी। फिर क्या था, मैंने भी खूब फैलना शुरू कर दिया। वहां मैंने बहुत सारे प्रॉफिटेबल अलायंसेस बनाए। आप सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अलायंसेस कितने ज़रूरी हैं। मेरी नज़र वहाँ पर एक बड़े अच्छे कैंडिडेट पर पड़ी। नाम है पॉलीथीन। शुरू में उसकी भी मेरी तरह कुछ खास एक्सेप्टेंस नहीं थी, मगर मैंने उसकी आंखों में कामयाबी का जज्बा देखा था। तो अभी मिलाता हूँ आपको
पॉलीथीन से। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। क्या काम करेगा? इस तरह से अपना और अपने पापा दोनों का नाम बदनाम करेगा। हम तो तुम्हें दफना देंगे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई इतना बुरा होने के बाद भी सर उठाकर कैसे चल सकता है। घटिया लिफाफे, हम तुम्हें जला देंगे। तेरी तो यहाँ एक नहीं चलने वाली। तेरे लिए तो वही सही रहेगा कि तू यहाँ से दुम दबाकर निकल पड़, वरना पछताएगा। तुझे पानी में डुबो देंगे। बस हो गया। लिफाफे। तुम्हें शायद मेरी खूबियों के बारे में पता नहीं। बनाने वाले ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मुझे दफनाओगे तो मैं जमीन को प्रदूषित कर दूंगा, जलाओगे तो हवा में जहरीली गैसें फैला दूंगा, और डुबोगे तो उसे भी दूषित कर दूंगा। तुम लोग मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते। आई एम द फ्यूचर। अगर हम तुम्हारा इस्तेमाल ही ना करें फिर क्या करोगे? ना तुम्हारी डिमांड रहेगी ना सप्लाई। ओ मैं तो डर गई। वैसे तुम सही कह रहे हो, मुझे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई मेरा इस्तेमाल ही ना करे। पर ऐसा होगा नहीं। मैं इतने प्रोडक्ट्स में मिलूंगा कि मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, तुम लोग आज मुझे बातें सुना रहे हो ना, एक दिन अपने लालच के कारण तुम सब मेरा इस्तेमाल करोगे, या जानते हुए भी कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन हूँ। चलो भागो यहाँ से। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। देखा, यही खतरनाक तेवर देखकर मैंने इस पॉलीथीन को अपने साथ शामिल कर लिया। ये एक फायदे का सौदा निकला। मगर अभी तो मुझे और तबाही मचानी थी। एक दिन मैंने देखा स्वच्छता और गंदगी आपस में बहस कर रही हैं। अरे भाई, अपने नाम की तरह स्वच्छता बेचारी भली साफ सुथरी, मगर मेरा ध्यान तो गंदगी पर था, गंदगी पर। देखो, तुम इस देश को छोड़कर चली जाओ। ये एक पवित्र और पावन देश है। यहाँ की संस्कृति में ही स्वच्छता और जन कल्याण की भावना है। यहाँ तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। गंदगी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। मेरी नहीं, तुम अपनी फिक्र करो। मैं तुम्हारे देश में इस हद तक फैलने वाली हूँ कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी पवित्रता, संस्कृति, जग कल्याण वाली बातें सही है, बट ये भी सही है कि लोग आलसी होते चले जाएंगे। उन्हें पता होगा कि स्वच्छता भली और गंदगी बुरी है, पर फिर भी वो स्वच्छता नहीं रखेंगे। और तुम्हें तो पता ही है, स्वच्छता की एब्सेंस मींस गंदगी की प्रेजेंस। तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लगती हो, पर तुम जानती नहीं, यहाँ तुम्हारी बात नहीं बनने वाली। भारत में सदियों से स्वच्छता को अपनाया और पूजा गया है। भला यहाँ तुम्हारा स्वागत कैसे होगा? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम ये अपना कचरा बांधो और कहीं और दफा हो जाओ। तो ठीक है, इस बात का फैसला भी लोग ही करेंगे कि अब इस देश में गंदगी रहेगी या स्वच्छता। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं जानती हूँ इस देश के लोग गंदगी से नफरत ही करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं विदेश चली जाऊंगी। बहुत खूब, तो अपनी बात से पीछे मत हटना। और हाँ, वीजा के लिए अप्लाई कर लो। वैसे पासपोर्ट तो होगा ना तुम्हारे पास? और कुछ सालों बाद हुआ भी वही जो गंदगी ने प्रिडिक्ट किया था। आप लोगों ने गंदगी को अपना लिया तो बेचारी स्वच्छता को देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। मगर अब भारत सरकार बहुत सारे स्वच्छता अभियान चलाकर उसको वापस बसाने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी क्या होता है। मगर गंदगी के ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। उसको भी मैंने अपना टीममेट बना लिया। मेरी नज़र एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी पर पड़ी
जो अलग अलग रूपों में लोगों को नुकसान पहुंचाने पर तुली रहती है, आप उसका एक रूप समझकर इलाज ढूंढ भी लो तो फौरन रूप बदलकर और भी खतरनाक हो जाती कि इलाज ढूंढना ही मुश्किल हो जाए। और उसको हम सब एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है बीमारी। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको बीमारी। जी हाँ, मैं हूँ बीमारी, हॉस्पिटल्स की प्यारी और फार्मा कंपनीज की दुलारी। मैं ना होती तो डॉक्टर को कौन पूछता, कौन करता दवाइयों की खरीदारी। लोगों ने जीवन शैली बदली, लापरवाही से कर ली यारी। मैंने भी अपने तेवर बदले, अकड़ निकाल दी इनकी सारी। जी हाँ, मैं हूँ बीमारी, किसी को डेंगू बन के पकड़ा, किसी को एबोला बन की खातिरदारी। कोविड बनकर जब मैं आई, कांप गई थी दुनिया सारी। जी हाँ, मैं हूँ बीमारी। अब चलती हूँ, मेरी चाइना की फ्लाइट है, कोविड का नया वेरिएंट भी तो लॉन्च करना है। तो देखा आपने, ये है मेरी छोटी सी और बहुत डेडिकेटेड टीम। अरे भाई कहाँ रह गए, एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम हो चला है। आओ भाई आओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस एनुअल जनरल मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो लेट्स बिगिन इट विद गुड न्यूज। हमारा इस साल का डेथ टर्नओवर पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये मगर 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 हमें ये आंकड़े और भी बढ़ाने होंगे और इसके लिए मुझे तुम सबकी सजेशंस चाहिए। सबसे पहले मेरी प्यारी बीमारी। सर, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक बार जिसके पीछे पड़ जाती हूँ तो उसकी जान लेकर ही छोड़ती हूँ। और आपकी छत्र छाया में तो हमारा काम बढ़ ही रहा है। और आपकी ये जो ब्रांचेस है ना अलग अलग, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इन्होंने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया है। लोगों का ईमान उनकी इम्यूनिटी से भी नीचे जाता जा रहा है और हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट तो बढ़ता ही जा रहा है। सर, आई मस्ट एडमिट, आपके बिना तो हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। वेल माय डियर गंदगी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार, भारत सरकार ने बहुत सारे स्वच्छता अभियान चला दिए हैं तुम्हारे खिलाफ। कहीं तुम्हें स्वच्छता से कोई थ्रेट तो नहीं? ओ सर जी, मैं गंदगी हूँ, जब मैं फैलती हूँ ना तो बस फैल ही जाती हूँ। ऐसे में मुझे थ्रेट, वो भी स्वच्छता से। आई मस्ट करेक्ट यू, थ्रेट मुझे स्वच्छता से नहीं बल्कि स्वच्छता को मुझसे है। मिली थी एक दिन, कह रही थी कि देश की सरकार मेरे साथ है। मैंने कहा पब्लिक की सपोर्ट भी मेरे साथ है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस माय डियर गंदगी। अरे भाई पॉलीथीन, क्या हाल है तुम्हारे? सुना है आजकल काफी बदनाम हो रहे हो। तुम्हारे पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर भारत सरकार ने तुम्हें बैन करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्टा पापा जी, बचपन से वहाँ का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा हूँ। लोग मेरे खिलाफ कितने भी अवेयरनेस कैंप्स लगा लें, मुझे बैन करने की कितनी भी कोशिश कर लें, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैं उनका जरूर बिगाड़ सकता हूँ, इनकी सेहत और पर्यावरण। गुड, कीप इट अप माय डियर। एक्सक्यूज मी सर, मैंने एक बात नोटिस की है। बाकी देशों के लोग हमसे बहुत डरते हैं, बट यहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं। इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि हम इनका कितना नुकसान कर रहे हैं। इन्हें पता है कि पोल्यूशन, गंदगी, बीमारी, पॉलिथीन सब कितने खतरनाक है, पर फिर भी हमें साथ लेकर चलते हैं। क्या हॉस्पिटैलिटी है इनकी। अरे सर, वो देखिए साधारण इंसान आ रहा है। इधर क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तुझे डर नहीं लगता? यहाँ पोल्यूशन, पॉलिथीन, गंदगी और बीमारी खड़े हैं। ओ, हम इंडियन है, इंडियन, हम किसी से नहीं डरते। लोग हमें इंटॉलरेंट कहते हैं, सबसे ज्यादा टॉलरेंट तो हम हैं। ये गंदगी, बीमारी, पोल्यूशन हमारा क्या कर लेंगे? इनके साथ तो हम डेली रहते हैं। हटे यहाँ से, चल। जब तक ऐसे नमूने देश में मौजूद हैं, हमारी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं।
आपको पता भी आप किस पर हंस रहे हो? आप इस दुनिया की बर्बादी पर हंस रहे हो। जिस तरह प्रदूषण अपनी जड़ें फैला रहा है, आने वाली जनरेशन का जीना मुश्किल हो जाएगा। आने वाली जनरेशन प्रदूषण इतना खतरनाक हो गया कि हमारी जनरेशन का जीना मुश्किल हो गया है। और तुम्हें इस पे हंसी आ रही है? हाँ यार, पोल्यूशन इतना खतरनाक है कि तो मुझे पोल्यूशन बनकर पता चला। मैं भी ये जान ही चुकी हूँ कि बीमारी के इरादे इतने भी नेक नहीं हैं। गंदगी, छी, नाम तो गंदा है ही, इसके इरादे भी गंदे हैं। यह पॉलीथीन तो बड़ा ही खतरनाक निकला, हम तो इसे हल्के में ले रहे थे। वाह वाह, तुमने तुम्हारी आंखें खोल दी। ये बातें सबको पता है पर कोई कुछ करता ही नहीं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हानिकारक है, हम सब जानते हैं, मगर फिर भी सब बेफिक्र हैं। स्वच्छता की लाभ और फायदा तो सभी जानते हैं, पर गंदगी ना फैलाई जाए इसके लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं? ये सब इसीलिए क्योंकि हम सब सफाई तो चाहते हैं पर सफाई करना नहीं चाहते। तो क्यों ना हम इस नाटक से ये मैसेज लेकर जाएं कि हम सारे समाज को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ खुद को बदलेंगे और हमसे ही सारा समाज बदलेगा। मुश्किल तो है पर ढूंढना ही होगा पोल्यूशन का सॉल्यूशन।